Dear students, in the previous recording, you were given the work of solving icebreaker activities. I hope you must have solved those activities and noted down in your notebooks. Today, open your book on page number 104. A brief introduction of the poet and the poem will be presented before interpreting 3 or 4 stanzas. The poem Inchcape Rock was written by Robert Southey. He was born in Bristol in 1774 and died in 1843 in England. His father was a draper or a dealer in fabric or clothing. He was educated at Westminster School and Balliol College, Oxford. He was an honorable poet of England from 1813 to 1843. कौमी शायर की हैसियत रखता था वो. His short poems like The Scholar, The Battle of Blenheim, Bishop Hatto, The Inchcape Rock, etc. are very famous with the school children. The Inchcape Rock is a ballad. Ballad means a short story in verse. मुख्तसर कहानी होती है शेरी अंदाज में, उसको बैलेट कहा जाता है. The Inchcape Rock is the story of the 14th century attempt by the abbot of Aberbrothok to install a warning bell on Inchcape. Abbot, head of Abbey of monks या नंस जहाँ पे रहते हैं वहाँ का जो हेड होता है उसको एबॉट कहते हैं. एंड दैट एबॉट हैड installed a warning bell on Inchcape. Inchcape is a rock. It was a notorious sandstone reef. Notorious means infamous. बदनाम सैंडस्टोन रीफ थी, चट्टान थी. About 11 miles 18 किलोमीटर ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ एंगस, स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड का जो एंगस मुकाम है वहाँ से 18 किलोमीटर दूरी पर, नियर डंडी एंड फाइफ, ऑक्यूपाइड बाय द बेल रॉक ऑफ लाइट हाउस, जिसके ऊपर बेल रॉक लाइट हाउस का कब्जा था. साउदी वॉज इंस्पायर्ड बाय द लीजेंडरी स्टोरी ऑफ ए पायरेट. साउदी हैड read the legendary story of a pirate. Pirate means person who loots in the oceans. समंदरों में जो डाकाजनी करता है उसको पायरेट कहा जाता है. बहरी कज़ाक भी बोलते उसको उर्दू में. कज़ाक, काफ जे अलीफ काफ. तो बहरी कज़ाक था, उसके कहानी से इंस्पायर हुआ था, जिसने कि ही हैड रिमूव द बेल ऑन द इंचकेप रॉक. इंचकेप रॉक पे जो बेल थी उसने उसको निकाल दिया था. प्लेस बाय द एबॉट ऑफ एबरब्रॉथॉक, जो एबॉट ने लगाया था. द पोएम गिव्स अस ए मैसेज दैट दोज हु डू रॉन्ग थिंग्स विल मीट विथ ड्यू पनिशमेंट. आफ्टर रीडिंग द पोएम we learn the lesson that if somebody does wrong with the pupil, he also receives the punishment in the end. यानी उसको भी आखिरी में सज़ा मिल जाती है. बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है उस गड्ढे में वही गिरता है.
तो ये यानी उस पायरेट की कहानी से समझ में आता है जिसने कि वो बेल को निकालने लगा दिया था। द इंच कैप रॉक। नाउ लुक एट द फर्स्ट स्टांजा। मार्क rhyming words and also rhyme scheme. No stir in the air, no stir in the sea. The ship was as still as she could be. Her sails from heaven received no motion. Her keel was steady in the ocean, without either sign or sound of their shock. The waves flowed over the Inchcape Rock. So little they rose, so little they fell. They did not move the Inchcape Bell. The abbot of Aberbrothok had placed that bell on the Inchcape Rock. On a buoy in the storm it floated and swung, and over the waves its warning rung. When the rock was hid by the surge swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberbrothok. Now look at the first stanza. No stir. Stir means movement. There was no movement in the air or in the sea. The sea as well as the air was silent, motionless. कोई हरकत नहीं थी, ना हवा में ना समंदर में. द शिप वॉज एज स्टिल एज शी वुड बी. और जहाज़ भी उतना ही मोशनलेस था जितना कि वो हो सकता था. यानी जाहिर सी बात है, जब समंदर खामोश हो, साकित हो, बेहरकत हो, तो उसके ऊपर चलने वाला जहाज़ भी स्मूथली चलता है. उसमें कोई यानी उथल पुथल नहीं होती है. न जहाज़ दाहिने झुकता है, न बाएं झुकता है, न सामने उड़ता है, न पीछे उड़ता है. यानी द शिप वॉज ऑल्सो motionless because there was no motion in the air as well as in the sea. Her sails from heaven received no motion. और जाहिर सी बात है, there was no air, so the sails of the sea of the ship didn't receive any motion from the heaven. यानी जो सेल्स थे उनको आसमान से भी कोई हरकत नहीं मिल रही थी. हर कील वॉज स्टडी इन द ओशन. कील मीन्स प्लेट और बीम जो नीचे होती है जहाज़ को स्टडी रखने के लिए, फर्म रखने के लिए. तो जो उसकी प्लेट थी दैट वाज आल्सो फर्म. इट वाज इन द ओशन एंड इट वाज फर्म बिकॉज देयर वाज नो मोशन इन द एयर और इन द सी. Now look at the second stanza. Without either sign or sound of their shock, the waves flowed over the Inchcape Rock. यानी बग़ैर आवाज़ या अलामत के उनके जो शौक होते हैं वेव्स के, वो रॉक के ऊपर बह रहे थे. जो लहरें थी समंदर की, समंदर खामोश था लेकिन वो रॉक से टच हो रही थी, रॉक के ऊपर जा रही थी. सो लिटिल दे रोस. वो इतना कम उठ रही थी. सो लिटिल दे फेल. और इतना कम नीचे जा रही थी. दे डिड नॉट मूव द इंचकेप बेल. वो इंचकेप बेल को उन्होंने हरकत नहीं दी. यानी जाहिर सी बात है, समंदर में जब हरकत होती होंगी तभी इंचकेप बेल बजती होंगी. तो समंदर चूँकि साइलेंट था, मोशनलेस था, इस वजह से जो लहरें थी वो रॉक को टच हो रही थी लेकिन इतनी ऊपर नहीं उठ रही थी कि जाकर बेल को टच होती है और बेल जो है तो बचती. बेल उसी वक्त बचती थी जब लहरें चट्टान को कवर करती थी, चट्टान को ढाँप देती थी और फिर बेल के यानी तक पहुंचती थी, तभी जो है तो बेल बचती थी. यानी अब आगे देखिए. द एबॉट ऑफ एबरब्रॉथॉक हैड प्लेस्ड द बेल ऑन द इंचकेप रॉक. जो एबॉट था एबरब्रॉथॉक का, तो उसने ये बेल या ये घंटा इंचकेप रॉक पर लगाया था. ऑन ए बॉय
इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड सॉन्ग। बॉय बोले तो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट एंकर्ड इन द सी टू मार्क डेंजरस प्लेसेस, यानी जो ख़तरनाक जगहें होती है समंदर के अंदर जगह होती है उनको की निशानदेही करने के लिए ऐसा ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट लगाया जाता है कि जब यानी लहरें बहुत ज़्यादा हो और कोई चट्टान हो तो वो आने जाने वाले जहाज़ों को उससे खबरदार करती थी। तो तूफ़ान अगर होता समंदर में तो वो बेल जो है तो यानी हरकत करती थी, बहती थी, हिलती थी पानी से और घूमती थी। एंड ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग रंग, और लहरों के ऊपर इसकी वार्निंग बजा करती थी। यानी ये जब घंटा बजता तो जहाज़ों को खबर हो जाती कि यहाँ पर चट्टान है, इधर जहाज़ को ले जाना नहीं है। तो सेलर्स जो है तो पहले ही होशियार हो जाते थे और जाहिर सी बात है वो चट्टान से की दूरी से जो है तो वो निकल जाते थे। When the rock was hid by the surge swell, when the rock was hid by the surge swell was a sudden and great rise in the level of the sea। समंदर में क्या होता है आप लोगों को पता है कि अचानक जो है तो यानी लहरें उठने लगती है। तो जब लहरें ऊपर की जानिब उठती थी तो रॉक जो है तो छुप जाती थी। दोज वेव्स यूज्ड टू हाइड द रॉक, रॉक को छुपा देती थी वो। द मराइनर्स हर्ड द वार्निंग बेल, और क्या होता था फिर जब वो लहरें उस चट्टान को छुपा देती थी तो वार्निंग बेल बजना शुरू हो जाती थी और मराइनर्स जो होते थे जहाज़रां तो वो घंटे की आवाज़ सुन लेते थे। एंड देन दे न्यू द पेरिलस रॉक, और उनके समझ में आ जाता था कि दे वेयर क्लोज टू द डेंजरस रॉक, कि वो डेंजरस रॉक के करीब थे। तो जाहिर सी बात है जब बेल बजती होंगी उनको मालूम हो जाता था तो वो अपने जहाज़ों को रॉक से दूर लेकर चले जाते थे। एंड ब्लेस द अबॉट ऑफ एबर ब्रॉथहॉक, और इस तरह से वो जो अबॉट था एबर ब्रॉथहॉक का जिसने कि ये बेल लगाया था उसको दुआएं देते थे, उसको ब्लेस करते थे। ब्लेस्ड बोले तो ब्लेस्ड, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है ब्लेस्ड, BLESSED, ब्लेस्ड का ओल्ड इंग्लिश फॉर्म। तो ये इस तरह से हुई। अब आपको इसके अंदर राइमिंग वर्ड्स की पेयर्स, दो स्टांजा की कोई भी चार में से, और राइम स्कीम दोनों भी पोस्ट करना है। इसके अलावा इसके अंदर आपको जो फिगर्स ऑफ स्पीच नज़र आती है ख़ास तौर पे एलिट्रेशन, और इसके अलावा एंटीथेसिस भी है, तो ये आप व्हाट्सएप पे पोस्ट करेंगे। और एक एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है पेज नंबर 105 पे, गिव रीजंस फॉर द सेलर्स एप्रिसिएशन ऑफ द अबॉट। वो अबॉट की जो तारीफ़ करते थे सेलर्स तो उसकी वजूहत बताने की है। तो इतना काफ़ी है आज। इंशाअल्लाह नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आगे के स्टांजास पेश किए जाएंगे। खुदा हाफिज़।